Welcome to the video lecture number 40 on the topic TQM RME 085. The topic of today is the inspection, and after going through this lecture, the students will be able to describe the types of inspection and the sampling plans. So, in this lecture, we will consider first the inspection, and before going ahead, we must know the meaning of inspection. So, inspection is basically means that the assessment, and whether the assessment is conforming the predefined standards or not. This is what the inspection. जब आप इंस्पेक्शन करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप देखते हैं कोई चीज़, क्या देखते हैं? पहले तो ये फिक्स करना होता है, उसके बाद क्या देखना है? जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं कि कोई पुलिस में कांस्टेबल के लिए भर्ती होने के लिए गया। अच्छा, तो कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए गया तो उसमें स्टैंडर्ड है कि भाई उसका हाइट 5 फीट 10 इंच होना चाहिए। ठीक है, तो कोई लोग, एक आदमी को असाइन किया जाएगा कि भाई आप हाइट देखिए। ओके, यू इंस्पेक्ट द height. Anyone will be assigned for the task for inspecting the height of each and every candidate came for the recruitment. Okay, a person who has assigned this duty is the inspector. Now he is clear in mind that what is to be inspected. Here in this case, the height is to be inspected. First, what he will do, he will take the measuring tape or the instrument given to him, and he will measure the height of each candidate coming to him. Okay, after noting down the height, then he assesses. First he assesses that what is its height through measuring instrument or by their own. जैसे किसी और चीज़ में रहेगा जिसमें मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, क्या करेगा? अपने जजमेंट के हिसाब से दे विल असेस व्हाट इज़ द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच the inspection will be performed, on which it is to be inspected. Then after assessment, they will compare with the standard one. Okay, after comparing, they will decide whether it is conforming the standard one or not. And after this, he or she will be able to decide whether the things are defective or whether it can be accepted or rejected, good or bad. Okay, so today, the topic of today is the inspection, and we have understood something about the inspection. Okay, so whenever any material or store is purchased, the item to be stored is purchased, there is always the question of its quality. कि किस क्वालिटी का होगा, जो हम परचेज कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का होगा. डज इट कन्फॉर्म टू द क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द परचेजर,
क्या ये क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड है उसको मीट आउट या उसको विद इन लिमिट में है या नहीं है। इफ़ द क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड इज स्मॉल, द परचेजर मे टेक the word of manufacturer regarding its quality. However, when the item is purchased in bulk, यदि एक आध कर लेते हैं तब तो कोई बात नहीं है, वो तो हम देख ही लेते हैं। यदि हम बल्क में परचेज करते हैं तो then the purchaser normally likes to assess by more positive means, that is the quality of store does conform to their requirement or not. It may also happen that components or materials manufactured in one section of the factory are used for further processing or assembly in another section. एक ऐसा भी केस हो सकता है कि मान लीजिए हमारे एक ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, तो एक सेक्शन में हम एक डिपार्टमेंट में हम क्या कर रहे हैं, टायर बना रहे हैं। दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कहते हैं, हम उसको असेंबल कर रहे हैं। तो जो हम टायर यहाँ पे बनाए वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर के यूज हो गया। तो दूसरा डिपार्टमेंट क्या हो गया, कस्टमर हो गया। जिसको हम देते हैं टायर बना करके वो क्या हो गया, परचेजर हो गया। ठीक है, और ये मैन्युफैक्चरर, द फर्स्ट डिपार्टमेंट can be seen like the manufacturer and the second department as purchaser or customer. ठीक है, अब है कि इंस्पेक्शन जो हम करते हैं, आप लोगों ने समझ गए कि इंस्पेक्शन में क्या है। तो while purchasing और whatsoever we are doing, चाहे हम बाज़ार जाएं चाहे कुछ भी करें, तो हम इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, कि जो चीज़ वो कह रहा है, जो भी हमारा क्या कहते हैं, ये जो भी हम बाज़ार जाते हैं तो हमें दुकानदार कहता है कि इसमें ये चीज़ जो क्लेम है हम उस क्लेम को असेस करते हैं। ठीक है, दैट इज़ व्हाट द असेसमेंट इज़ द मेन एम ऑफ द इंस्पेक्शन। थ्रू इंस्पेक्शन वी आर असेसिंग। तो अब है कि इंस्पेक्शन में सबसे पहले एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें कन्फॉर्मेंस जांचना है। ठीक है, पहले वो डिसाइड करना होता है। ठीक है, देन उसको या तो मेजर किया जाता है या जज किया जाता है। या तो एक्चुअल मेजर करते हैं, यदि एक्चुअल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, जज करते हैं। ठीक है, किसी केस में मेजरमेंट पॉसिबल है, जैसे हमारा हाइट है, डेप्थ है, क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो तो हम मेजर कर सकते हैं। डायामीटर है, वॉल्यूम है, these aspects can be measured, these quality characteristics can be measured. However, many quality characteristics can be attributed only, for example color, texture, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ है जिसको हम जजमेंटल है, उसको हम जजमेंटल के बेस पे हम उसको असेसमेंट करते हैं। ओके, तो अब है दो केस हैं इंस्पेक्शन में, कंडीशन है। तो पहले दो टाइप का इंस्पेक्शन है, पहले समझ लेते हैं इंस्पेक्शन दो टाइप के हैं। पहला क्या है, 100% इंस्पेक्शन या 100% इंस्पेक्शन। ठीक है, दूसरा है सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। दूसरा है क्या, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। पहला 100% इंस्पेक्शन और दूसरा है सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, तो अब 100% एज द नेम इम्प्लाइज कि जितना चीज़ें बनी है सारे चीज़ों का हम इंस्पेक्ट करें। ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स और आइटम्स और प्रोडक्ट which has been manufactured in a company will be inspected, 100% इंस्पेक्शन, सभी चीज़ों का इंस्पेक्शन होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि इंस्पेक्शन कॉस्ट पे,
जो आदमी इंस्पेक्ट करता है वो एक आदमी है, उसकी सैलरी है, ठीक है, हाँ, दैट इज ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ द इंस्पेक्शन, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन करने में हमारा टाइम लगता है और भी मजदूर लगते हैं। जैसे मान लो एक इंस्पेक्टर है, 2 मजदूरों को लगा दिया, चलो भाई तुम डब्बा खोलो, तुम डब्बा रखो, इधर से उधर करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होते हैं, एक तो ये है इंस्पेक्शन कॉस्ट। कई बार क्या होता है कि हमें इंस्पेक्शन क्या कहते हैं करते हैं और उसके लिए हमें उस चीज़ों को तोड़ना पड़ता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के थ्रू ही हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। पहला केस है कि जब हमारा पहला केस है 100% इंस्पेक्शन और दूसरा केस है सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। एक केस है कि जब हम मेजर कर सकते हैं क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को, लेकिन क्वांटिटी जो है वो बहुत अधिक है, तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, यदि हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाँ, तो हम देखते हैं क्या कि कॉस्ट, देन वी ट्रेड ऑफ बिटवीन द ट्रेड ऑफ the inspection trade off between the inspection cost and the average outgoing quality। यदि हम सैम्पलिंग करते हैं तो हमारा कितना हमारा तो हमारा आउटगोइंग क्वालिटी लेवल क्या होता है, और 100% करते हैं तो क्या होता है, और हमारा इंस्पेक्शन कॉस्ट यदि हम 100% करेंगे तो हमारा इंस्पेक्शन कॉस्ट कितना होगा, और सैम्पलिंग करेंगे तो इंस्पेक्शन कॉस्ट कितना होगा। तो इसके बीच में हमें ट्रेड ऑफ करके हम चूज़ करते हैं कि सैम्पलिंग इंस्पेक्शन पे जाना है या 100% इंस्पेक्शन पे जाना है, ओके। अब दूसरा चीज़ है वाइटलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो पैराशूट है, मान लो हमारा प्रोडक्ट क्या है, लाइफ कितना ज़्यादा क्या कहते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसका एकदम पूरा एक एक पार्ट चेक करके जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्या कहते हैं फ्लाइट है, बिफोर टेकिंग ऑफ द फ्लाइट द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर चेक्स ऑल द पैरामीटर्स, देन ओनली he or she writes that now the flight is fit for flying, now the aircraft is fit for flying, ठीक है। तो जहाँ लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ भी हम सैम्पलिंग करके काम नहीं चला सकते, वहाँ भी हमें 100% इंस्पेक्शन करना है। जैसे फ्यूल भरा है कि नहीं, ब्रेक ठीक है कि नहीं, क्या कहते हैं लाइटिंग ठीक है कि नहीं, हमारा सारे डायल्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, ये सारी चीज़ें सारा चीज़ हम चेक करते हैं, ओके। तो अभी आप लोगों ने समझा कि एक तो होता है 100% इंस्पेक्शन और दूसरा होता है सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, और किस केस में, इन विच केस 100% इंस्पेक्शन इज प्रीफर्ड एंड इन विच केस सैम्पलिंग इंस्पेक्शन इज प्रीफर्ड। तो 100% इंस्पेक्शन हम कब प्रीफर करते हैं, जब हमारा सबसे पहले ये क्या कहते हैं इंस्पेक्शन जो कॉस्ट है वो उसको देखते हैं, पहला चीज़ ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, इट इज़ विद इन द लिमिट और नॉट। नंबर 2, पार्ट्स आर फ्यू, वी आर प्रोड्यूसिंग फ्यू पार्ट्स, तो उस केस में भी हम 100% इंस्पेक्शन में जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि अब यदि ये है कि हमारा लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, क्रिटिकलिटी ऑफ द प्रोडक्ट यूसेज, कि यदि हम उसको नहीं 100% मतलब एक भी प्रोडक्ट फेल हो गया, मान लो हमने सैंपल किया 100 पीस किया, ठीक है, 100 पीस, मान लो हमने 1000 पीस बनाए, उसमें से 100 पीस चेक किए, 900 ये क्या कहते हैं रेस्ट हम क्या कहते हैं पीसेस हमने चेक नहीं किया, तो क्या होता है उसको जब यूज होगा तो that may fail and the who will use it, he or she will suffer, okay. So in that case also we prefer the
100% इंस्पेक्शन। अब है सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन इज प्रीफर्ड यदि हमारा मास प्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज टू हाई, बहुत ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वो अब हम उसको हम मेजर करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, गेज यूज कर लेते हैं। ओके, गेज के थ्रू हम एट्रीब्यूटिंग कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, उससे भी नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, फ्यू पार्ट्स, जैसे 1000 बनाना है तो 1000 में से हम 100 इंस्पेक्ट कर लिए, 50 इंस्पेक्ट कर लिए, और 50 इंस्पेक्ट करने के बाद हम एसेस कर लेते हैं कि हमारा कि अभी 50 में से कितना निकला डिफेक्टिव, तो हम उससे एसेस कर लेते हैं भाई 1000 में से कितना डिफेक्टिव है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी एसेस द डिफेक्टिव इन ए लॉट, तो इसको कहते हैं लॉट बाय लॉट सैम्पलिंग प्लान, और उसके बेसिस पे हम लॉट को एक्सेप्ट भी करते हैं और रिजेक्ट भी करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम देते हैं तो देन प्रॉब्ली यू विल बेटर अंडरस्टैंड। जैसे आम का है, आम में क्या होता है, एक ट्रक आम लेकर के मंडी में जाया जाता है। जो भी किसान है वो एक ट्रक आम लेकर के आज़ादपुर मंडी दिल्ली में पहुंच गया। अच्छा भाई, ठीक है। अब वहाँ पे क्या करता है लेने वाला, वो क्या करेगा कि वो दोनों पहले बैठ करके तय करेगा, कहेगा भाई कि पूछेगा वो आपका कितना % मतलब ख़राब है इसमें, जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और कितना % की क्वालिटी ख़राब है। हो सकता है आम है भाई, कितना ख़राब भी होगा उसमें, तो अच्छा ख़राब थोड़े, सारा देख करके वो तो आम को तोड़ा किसान, ट्रक में लोड कराया तो पहुंच गया मंडी। अब मंडी में क्या होता है कि उससे पहले पूछता है कि आपका असेसमेंट क्या है, तो वो कहता है भाई हो सकता है 10% इंस्पेक्शन है, तो बोलता है ठीक है 10% है। तो वो क्या करता है, रेंडमली ऊपर से, बीच से, नीचे से, ठीक है, 3 सैंपल निकालता है। मान लो 50-50 आम का 3 सैंपल रेंडमली निकाल लिया। अब उसमें देखा कि 10% से ज़्यादा है या कम है, तो 10% से यदि ज़्यादा है, या तो वो क्या करता है, रेट उसका कम कर देता है कि भाई आम का इतना रेट में हम नहीं ले पाएंगे आपका, हम पूरा ट्रक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम वी आर डिसाइडिंग द क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ here we are deciding the quality of the whole truck on the basis of just few, by inspecting some few samples of some sample size। तो यहाँ पे 2 चीज़ मैटर करता है कि कितना सैंपल लें, ठीक है। नंबर 1 कितना सैंपल लें, 5 बार सैंपल करें कि 10 बार करें कि 2 बार करें कि 3 बार करें, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक सैंपल में कितना हम आइटम लें, एक सैंपल में हम 5 लें कि 10 लें कि 7 लें कि 6 लें, ठीक है। मान लो हम 5 का सैंपल लेकर के हम 10 सैंपल लेते हैं, एक सैंपल 5 का सैंपल साइज लेकर के हम 6 सैंपल लेते हैं, तो हमने कितना पीसेस इंस्पेक्ट किया, 5 × 6 दैट इज 30 पार्ट्स हमने इंस्पेक्ट किया 100%, ठीक है। हाँ, और इसके बेसिस पे जो लॉट है 1000 का, उसके बारे में हमने डिसाइड कर लिया कि वो एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेड है, ठीक है। समझ गए बात को? तो हम लोगों ने 2 चीज़ समझा, 100% इंस्पेक्शन और सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। अब है कि डिफाइनिंग द क्वालिटी ऑफ ए लॉट, डिफाइनिंग द क्वालिटी ऑफ ए लॉट। दूसरा चीज़ हम डिस्कस करेंगे, whether an individual article is accepted on the basis of conformance or specification, conformance to specification. We need another criterion for acceptance of a lot containing large number of items. A perfectionist might say that a lot containing even one defective piece should be rejected.
भाई एक ही पीस निकल गया, मतलब कि लॉट में 100% चीज़ सही नहीं है। बट वी नो फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस दैट इन मोस्ट केसेस दिस इज नॉट practicable. If we want to insist on 0% defective lots, we should be prepared to pay a comparatively heavy price for inspection, which may prove more expensive than accepting a few defective pieces in the lot. Therefore, except in case of stores of critical nature, a certain percentage of defective articles are accepted in the lot. The lower the percentage defective, the better the quality of the lot. तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे क्या कि द लोअर द परसेंटेज डिफेक्टिव बेटर द क्वालिटी ऑफ द लॉट। मतलब एक लॉट में से मान लो 1000 पीस का लॉट है, ठीक है, उसमें से हमने क्या किया 10-10 का 3 सैंपल लिया, ठीक है, 10-10 यानी 30 को 10 का पहला 10 का इंस्पेक्शन किए तो 2 डिफेक्टिव निकला, दूसरा 10 का इंस्पेक्शन किए तो 1 डिफेक्टिव निकला, तीसरा का किए तो 0 निकला। तो कितना हो गया कि कितना डिफेक्टिव हो गया कि 2 + 1 + 0 दैट इज़ 3 डिफेक्टिव। कितना में से 30 में से, तो 30 में से 10, तो 1000 में से कितना होगा, 1000 में से कितना हुआ, ठीक है, तो 1000 में से कितना हो गया कि 3 / 30 × 1000। तो ये हुआ हमारा कि ये एवरेज हो गया। ये क्या हो गया, एवरेज क्वालिटी ऑफ द लॉट। अब हम एवरेज क्वालिटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि असेसमेंट करते हैं कि लॉट को ये एवरेज क्वालिटी है, तो इस क्वालिटी के बेस पे हमको एक्सेप्ट करना है लॉट को या रिजेक्ट करना है, ठीक है। अब है कि रिस्क इन सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, रिस्क इन सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, ठीक है। तो रिस्क क्या है सैम्पलिंग इंस्पेक्शन में? तो पहला रिस्क है कंज्यूमर्स रिस्क और दूसरा रिस्क है क्या, प्रोड्यूसर्स रिस्क। अंडरस्टैंड कीजिए, कंज्यूमर्स रिस्क और प्रोड्यूसर्स रिस्क, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि प्रोड्यूसर्स रिस्क क्या है कि ए गुड लॉट, द चांसेस ऑफ गुड लॉट इज बीइंग रिजेक्टेड। तो ये प्रोड्यूसर का रिस्क है। मान लो हमने कहा कि पहले से तय किया गया कि एक जो लॉट है 1000 में से हम 10-10 का 3 सैंपल लेंगे, और यदि हमारा एवरेज डिफेक्ट क्या कहते हैं जो है वो क्या कहते हैं 5% से कम होगा तो हम लॉट को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। खूब बढ़िया लॉट है, सारा आइटम मान लो क्या कहते हैं लॉट में खूब बढ़िया है। मान लो क्या कहते हैं कि 1000 में से 5 ही डिफेक्टिव है और पाँचों मान लो सैंपल में निकल गया, निकलने के चांस है ना। मान लो 5 डिफेक्टिव है तो 1000 में से 5 तो कितना हो गया 5/1000। लेकिन यदि हम सैंपल लें और 3 सैंपल में यदि 5 डिफेक्टिव निकल जाए तो कितना हो गया एवरेज, तो 5/30, 5/30 × 1000। तो हमारा क्या हो गया, सैंपल से हमें कितना पता चल रहा है कि हमारा एवरेज क्वालिटी क्या है, इतना, जबकि उसमें उतने ही डिफेक्ट थे और सब सैंपल में ही निकल गए। तो रिस्क है ना। मान लो इसका एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे एक लड़का है, मान लो 10 क्वेश्चन हम देते हैं तुमको कि भाई कि ये 10 क्वेश्चन में से ही 2 क्वेश्चन हम देंगे, 2 क्वेश्चन हम देंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। कोई लड़का क्या किया कि 8 क्वेश्चन पढ़ा और 2 क्वेश्चन छोड़ दिया,
नहीं। तो अब वही 2 क्वेश्चन छोड़ा जो हमने दे दिया, और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने कि वही सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पढ़ा और क्या कहते हैं वो जो हमने पूछा, तो ये रिस्क है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उस जिसने 8 क्वेश्चन मतलब जिसको 80% नॉलेज है उसको हम ग्रेडिंग कम कर रहे हैं, और जो क्या कहते हैं हमारा बैड जो है, हाँ मतलब जो सिर्फ 20% नॉलेज है उसको हम बहुत ज़्यादा नंबर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सैम्पलिंग में हो सकता है, ऐसा सैम्पलिंग में हो सकता है। यदि 100% पढ़े तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 100% यदि पढ़े तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, लेकिन सैम्पलिंग में रिस्क है, तो क्या रिस्क है? प्रोड्यूसर्स रिस्क। प्रोड्यूसर्स रिस्क क्या है कि ए गुड लॉट chances are there that lot which is being produced can be rejected। वो क्या होता है? रिजेक्ट हो सकता है। गुड लॉट है लेकिन ये रिजेक्ट हो सकता है। और कंज्यूमर्स रिस्क क्या है? कंज्यूमर्स रिस्क क्या है कि ए बैड लॉट इज बीइंग एक्सेप्टेड। ये भी हो सकता है कि खूब बढ़िया है, हमने खूब मान लो एक मैन्युफैक्चरर एकदम गलती सही आइटम पैक में है, लेकिन जब आप इंस्पेक्शन किए तब खाली बढ़िया बढ़िया दिखाई दिया, तो बोले वो ये तो बहुत बढ़िया है, और जब इसको यूज करने लगे तब पता चला अरे यार इसमें तो पूरा डिफेक्टिव है। हाँ, तो इसमें प्रोड्यूसर का भी रिस्क है और कंज्यूमर का भी रिस्क है। प्रोड्यूसर का क्या रिस्क है कि ए गुड लॉट कैन बी रिजेक्टेड, और प्रोड्यूसर का क्या रिस्क है? ए बैड लॉट कैन बी एक्सेप्टेड। तो हम लोग दोनों बैठ करके बहुत बार अध्ययन करके, ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं क्या? AOQL, ये कंपनी डिसाइड करती है। AOQL, एवरेज आउट गोइंग क्वालिटी। पहले वो बनाता है, इंस्पेक्ट करता है, बार बार इंस्पेक्शन करने के बाद वो एसेस हो जाता है कि हमारा एवरेज कितना डिफेक्टिव है, और उस एवरेज डिफेक्टिव को हम बोल देते हैं कि भाई इतना है, 5% डिफेक्टिव है या ये है। ठीक है, फिर हम बैठ करके सैम्पलिंग प्लान तय करते हैं कि हम सैम्पलिंग कैसे करें, हाउ द सैम्पलिंग इज़ टू बी डन, और फिर उसी बेसिस पे हम सैम्पलिंग करते हैं। अब यदि सैम्पलिंग में, ठीक है, according to stipulated policy we are going for the inspection, and according to that previous strategy we are accepting or rejecting the lot। okay, अच्छा, तो अब क्या फिर एक टर्म क्या चला आया? सैम्पलिंग प्लान। ठीक, अब सैम्पलिंग प्लान में एक होता है सिंगल सैम्पलिंग प्लान। क्या होता है? सिंगल सैम्पलिंग प्लान। सिंगल सैम्पलिंग में प्लान में क्या है कि मान लो एक सैंपल साइज हमने पहले से फिक्स किया, ठीक है, कि मान लो से इट इज़ 50, कि 50 इंस्पेक्ट करेंगे, और हम कर देंगे उसमें एक्सेप्टेंस नंबर, ठीक है, और एक्सेप्टेंस नंबर हमने फिक्स कर दिया क्या? ठीक है, कि 2, यदि 2 डिफेक्टिव रहा तो हम ले लेंगे, अगर यदि 2 से, और हो सकता है हमने ये भी फिक्स कर दिया रिजेक्शन नंबर की 3, ठीक है, यानी 2 से ज़्यादा यानी 3 रहा तो हम रिजेक्ट कर देंगे, 2 रहा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, 2 या 2 से कम रहा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, 3 या 3 से ज़्यादा रहा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक। अब जो है, ठीक है कि नहीं, तो अब हम इसी के बेस पे हम इंस्पेक्शन करेंगे, और इंस्पेक्शन में इफ़ इट इज़ फाउंड दैट कि भाई 2 से 2, मान लो 2 क्या कहते हैं 1 निकला, एक हमने सैंपल लिया, उसमें हमारा क्या है कि 1 डिफेक्टिव, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि मान लो सैंपल लिए 4 डिफेक्टिव निकल गया तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि पहले से तय है। तो ये था क्या?
सिंगल सैम्पलिंग प्लान। ओके, अब है दूसरा कि दूसरा चीज़ है कि डबल सैम्पलिंग प्लान। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे डबल सैम्पलिंग प्लान। तो उसमें जो है डबल सैम्पलिंग प्लान, तो पहले क्या करेंगे, डबल सैम्पलिंग प्लान की उसमें ये चीज़ होता है, क्या होता है, क्या फर्स्ट सैंपल साइज पहले हम डिसाइड करते हैं। फर्स्ट सैंपल साइज, फर्स्ट एक्सेप्टेंस नंबर, फर्स्ट रिजेक्शन नंबर, ठीक है। फिर सेकेंड सैंपल साइज, फिर सेकेंड एक्सेप्टेंस नंबर। ओके, तो मान लो क्या कहते हैं, फर्स्ट सैंपल साइज हमारा हमने 50 का रखा, ठीक है। फर्स्ट एक्सेप्टेंस नंबर हमने 2 रखा, फर्स्ट रिजेक्शन नंबर यानी 3 रख लिया। अब सेकेंड सैंपल साइज, अब इसके बेस पे यदि रिजेक्ट होता है तो हम क्या करेंगे, हम सेकेंड सैंपल पे जाएंगे, ठीक है। फिर सेकेंड सैंपल के बेस पे यदि वो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, ठीक है, तो इट विल बी सीन दैट द सेकेंड रिजेक्शन नंबर इज नॉट मेंशन्ड सिंस इट इज, ठीक है, एट द first sample of size n1 is inspected. If the number of defective in the sample is equal to or less than the acceptance number, the lot is accepted. If the number of defective is equal to or more than the acceptance, then lot is rejected. In that case, the number of defective is more than the acceptance number of the first but less than a second sample size n2 is inspected, ठीक है। if both the sample put together the number of defective is equal to or less than means second acceptance number, okay, then the lot is accepted. But if the defective are more than the stipulated acceptance number for the second sample size, then lot is rejected. Okay, so this was the, and apart from that we have also multiple sampling plan and the sequencing sample plan, which is away from your syllabus. So these things we will, so rest of the thing, so with this you might have understood and you will be able to describe the types of inspection and the sampling plan. Okay, that is what are the sampling plan we have taught. I have taught that is the single sampling plan and the double sampling plan. Okay, so with this I am stopping my lecture. So we will discuss the rest of the things in the next lecture. Thank you. Okay, we will see you in the next class.